Hello, am I audible? Hello, am I audible? Yes, you're audible now. Okay. And is my screen visible? Yeah. Okay, keep silence everyone. So today we will see a priori algorithm. So in last lecture we started with association rule mining, right? What is association rule mining? Yes, who will tell me? आप इधर आ जाओ ना नहीं. What is association rule mining? Yes. What is association rule mining? Ma'am, your voice is not clear. Association rule mining is about finding the association among the attributes in data. Okay? Data में जो attributes है, उनके बीच में association find करना है. Okay? Association मतलब relation. Okay? How two attributes are associated, two or more attributes are associated with each other. Right? उसका जो नाम है association rule mining. That means we are trying to find out what is the association between different attributes. Okay? Are they related? Are they not related? Right? So we need to find out that. That is association rule mining, and for doing this we are using a priori algorithm. Okay, a priori algorithm is for association rule mining. Okay, तो हम लोग ये एग्जांपल देखेंगे. So here we have a 6 transactions. Okay, T1, T2, T3, T4, T5 and T6. Okay, and these are the list of items that were bought by the customer in each of this transaction. Okay, that means in transaction T1 customer bought item
1, 2 and 3. In transaction 2, customer bought item 2, 3 and 4. तो I2, I3 and I4 ऐसे शॉर्ट में लिखा है. ओके. ट्रांजेक्शन 3 में I4 and I5. ओके, लाइकवाइज. अंडरस्टूड? यस और नो? इतना समझ में आ रहा है ये क्या है? व्हाट इज दिस एवरीवन? हाँ, ग्रोसरी शॉपिंग या जो भी शॉपिंग करने गए उसमें ये आइटम कस्टमर ने खरीदे हैं, राइट? तो अलग अलग ये ट्रांजेक्शन्स है. ओके, तो आपको ये सब आइटम्स के बीच में एसोसिएशन फाइंड करना है. ओके, आइटम्स के बीच में कुछ एसोसिएशन है कि नहीं. देन हाउ वी विल डू? तो ए प्रायोरी में आप क्या करते हो? पहले तो आपको चाहिए दो पैरामीटर्स. एक पैरामीटर है सपोर्ट, दूसरा पैरामीटर है कॉन्फिडेंस. ओके, नाउ व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट मतलब जो भी आइटम एक साथ खरीदी है या आइटम जितनी बार फ्रीक्वेंसी जो उसका है ट्रांजैक्शन में, हर एक आइटम का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट. ओके, तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि आइटम वन कितने बार फ्रीक्वेंटली अकर हुआ है ट्रांजैक्शंस में? कितनी बार हुआ है आइटम 1? सी दिस, नहीं दिख रहा है. Calculate, account how many times item 1 occurred in all these transactions. Count and tell me how many times item 1 occurs. This is 1, 2, 3 and 4, right? That means support of item 1 is 4, right? Likewise, जो भी आइटम का सपोर्ट फाइंड करना है, यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम्स दैट आइटम अकर्स इन ऑल द ट्रांजैक्शन. अंडरस्टूड एवरीवन? सो नाउ दैट इज सपोर्ट. नाउ व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस इज अ पैरामीटर, इज अ रेशियो. ओके, रेशियो है कि सपोज ए, बी एंड सी आइटम है, तो ए बी आइटम साथ में खरीदा है तो सी आइटम लेने के चांसेस क्या है, राइट? तो ये आपको फाइंड आउट करना है. तो वो रेशियो कितने चांसेस है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्फिडेंस. ओके, कॉन्फिडेंस ये रिप्रेजेंट करता है कि चांसेस कितने हैं कोई आइटम बाय करने के. यस और नो? आपको आगे पता चलेगा. ठीक, तो यहाँ पे दोनों का मैं एक मिनट डेफिनेशन लिखवा लेती हूँ. Write down definition of support. The support for an association rule सपोर्ट का डेफिनेशन लिखवा रही हूँ. राइट डाउन एवरीवन, ऑनलाइन वाले भी. द सपोर्ट फॉर एन एसोसिएशन रूल write down like this, x to y, write down like this, x to y is the percentage of transactions, the percentage of transactions that contains x union y, x union का symbol and y. Okay, now write down definition for confidence. The confidence for an association, the confidence for an association rule
The confidence for an association rule is the ratio of transactions that contain X union Y to the number of transactions that contains X. Okay, understood? Now let's start this example. Everyone, draw this table. This is your example. So write down example first, then we will solve it. You are given this list of transaction and items that are bought in each of these transactions. So draw this table. ऑनलाइन वाले भी प्लीज लिखो आप लोग ये टेबल. ओके, देख लो आप लोग. इतना लेट. 20 मिनट्स हो गए. Done everyone? ओके, एग्जाम्पल में आपको दिया रहेगा व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट एंड मिनिमम कॉन्फिडेंस. तो यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड दिया है 50% एंड कॉन्फिडेंस 60% दिया है. राइट डाउन दैट ऑल्सो. Done? सो एप्रारी एल्गोरिथम में 2 स्टेप है. ओके, एक तो जॉइन स्टेप है और दूसरा है प्रून स्टेप. मैं आपको बता रही, एक मिनट विंडो शेयर करती हूँ. जॉइन स्टेप में आप क्या करते हो, आइटम सेट का एक लिस्ट बनाते हो. ओके,
ज्वाइनिंग में आपको सेम सेट को वही सेट से ज्वाइन करना है, कैसे करना है हम लोग देखेंगे अभी, ओके। बट फॉर राइट नाउ रिमेंबर दैट a priori is a two-step process, join step and prune step, okay. So join step में generates k plus 1 item sets from k item sets. आपके पास k आइटम सेट है तो k plus 1 आइटम सेट बनेंगे, मतलब 1 आइटम सेट है तो आपके पास 2 आइटम सेट बनेंगे, 2 है तो 3 आइटम सेट्स बनेंगे, ओके। कैसे बनेंगे मैं अभी दिखाऊंगी आप लोग को, ओके। एंड सेकेंड स्टेप है प्रून स्टेप। प्रून स्टेप में आप क्या करते हो कि मिनिमम सपोर्ट आप चेक करते हो हर एक आइटम सेट का, और मिनिमम सपोर्ट जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है आइटम सेट उसको आप रिमूव करोगे, ओके, आपकी लिस्ट में से। सो दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस, ओके। आई थिंक ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कैंडिडेट आइटम सेट पहले फाइंड करना है, ओके। तो हम लोग कितने आइटम्स है यहाँ पे यूनिक, 5 आइटम है, I1 to I5, ओके। तो वो हर एक आइटम सेट हम लोग लिस्ट आउट करेंगे और उनका काउंट लिखेंगे लाइक दिस। तो दिस इज कैंडिडेट सेट C1। कैंडिडेट सेट C1 बनाया, उसमें हमने क्या किया, हर एक आइटम को लिस्ट आउट किया, राइट डाउन, हर एक आइटम को लिस्ट आउट किया, I1, I2, I3, I4 एंड I5, ओके। और उसका काउंट लिखा, I1 how many times item I1 is occurring in the transaction, right? आपने ऑलरेडी काउंट किया था 4, yes. Then how many times item I2 is occurring in all the transactions? 5 times. I3 4 times, I4 4 times, and I5 2 times, okay. So you have to make this candidate set, which we call it as C1, okay, set C1. So this is called as frequency table. Why it is called as frequency table? Yes, who will tell me why it is called as frequency table? कौन सा? Right, because we have counted how many times one item is occurring in the transaction, right? कितनी बार frequently occur होता है, right? तो वो count निकाला, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, frequency set, okay? Now next prune step है. What is prune step? Prune step में आप क्या करोगे कि मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो आइटम को आप ये लिस्ट में से रिमूव कर दोगे, ओके। सो मिनिमम सपोर्ट इज व्हाट, मिनिमम सपोर्ट कितना है यहाँ पे 50%, तो कितना हुआ, ओके, यहाँ पे आई थिंक 3 लिया है, ओके। 50% टोटल 6 ट्रांजेक्शन है, राइट, दैट मीन्स आपका मिनिमम सपोर्ट यहाँ पे क्या है 3, मिनिमम सपोर्ट कितना है 3, ओके। तो जो आइटम ये कंडीशन मिनिमम सपोर्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसको हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है, राइट। तो कौन सा आइटम रहेगा, I1 रहेगा, बिकॉज उसका काउंट कितना है 4, I2 का काउंट क्या है 5, I3 4 वो रहेगा, I4 4 है तो वो रहेगा, I5 का काउंट 2 है तो मिनिमम सपोर्ट 3 है, राइट। तो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दैट, so we will remove item 5, okay, and we will make this set L1, least one, okay, least one एक बनाएंगे जहाँ पे
मिनिमम सपोर्ट काउंट जो सेटिस्फाई करता है वही आइटम को हम लोग रखेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? Nobody is saying anything except you. हरे कृष्णा। Okay? Done? किसी को नहीं समझा है तो मैं रिपीट करती हूँ। समझा नहीं? सेकंड स्टेप रिपीट करो मैम एक बार। हाँ, यहाँ पे कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ ना विशाल, समझा? ओके राइट। अभी हमें वापस वही स्टेप रिपीट करना है। कौन सा? जॉइनिंग एंड प्रूनिंग, ये दो ही स्टेप हमें रिपीट करना है। ओके तो अभी हम लोग क्या करेंगे? जॉइनिंग स्टेप करेंगे। जॉइनिंग अभी तक हमने किया नहीं था, वी आर डूइंग दिस फर्स्ट टाइम। ओके पहले हमने क्या किया? आइटम का काउंट लिखा, हाउ मेनी टाइम्स ईच एंड एवरी आइटम आर अकरिंग। ओके उसके बाद हमने रिमूव किया, प्रूनिंग किया। प्रूनिंग में हमने क्या किया? मिनिमम सपोर्ट को हाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, वही आइटम को हमने रखा है लिस्ट में। ओके नाउ वी विल डू जॉइनिंग स्टेप। तो अभी ये जो L1 सेट मिला है हमें, इसको ही हम उसके साथ ही ज्वाइन करेंगे। सो वी विल ज्वाइन L1 विथ L1 ओनली। ओके L1 को L1 के साथ ज्वाइन करना है, मतलब क्या करोगे आप? I1 को I2 के साथ, I1 को I3 के साथ, I1 to I4, I2 to I3, I2 to I4, I3 to I4। ये ज्वाइन करने के बाद आपको ये सेट मिलेगा। ओके सो वी विल कॉल इट एज कैंडिडेट सेट C2। ओके I1 to I2, I1 to I3, आप खुद बनाओ ये सेट। कैंडिडेट सेट C2 आप खुद बनाओ। समझ रहा है सबको? तो ये जो L1 था इसमें 1 आइटम थे। सी यहाँ पे 1 ही आइटम है, I1 है यहाँ पे, इसमें I2 है। राइट 1 आइटम सेट हो गया ये। राइट अभी जो ज्वाइन करोगे तो कौन सा आइटम सेट बनेगा? 2 आइटम सेट। ज्वाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं? K+1 आइटम सेट बनाते हैं। K रहेगा तो K+1। राइट तो हमारा 1 आइटम सेट था, तो हम अभी क्या करेंगे? 2 आइटम सेट बनाएंगे। यस और नो? राइट तो हमने बनाया I1 to I2, I2 to I3। अंडरस्टूड एवरीवन? वो बन गया कैंडिडेट सेट C2। अभी आपको क्या करना है? उनका काउंट निकालना है, हाउ मेनी टाइम्स दिस आइटम सेट इज अकरिंग। ओके समझ रहा है? तो आपने जो टेबल लिखा है पहले ये, उसमें आपको चेक करना है I1 I2 सपोज पहला आपका सेट का आइटम है। राइट पहला सेट I1 I2 है। यस और नो? तो I1 I2, how many times I1 and I2 is occurring in all this transaction? You have to count that. कितनी बार हो रहा है? 1, 2, 3 and 4, right? Then you will write the frequency in that. Okay? C2 में आपको फ्रीक्वेंसी लिखोगे उसका। I1 I2 का कितना है? 4। Is everybody getting this? नहीं समझा? अभी आपने ये लिखा I1 and I2 आपको मिला, ये कैंडिडेट सेट C2 मिला आपको। ये कैसे मिला समझा सबको? ये कैसे आया? यस समझा? नहीं समझा? ये समझा ना? I1 I2 ये कैसे आया? I1 I3
यस और नो? ओके, तो अभी उसका काउंट सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है और यहाँ पे लिखना है. दिस इज कॉल्ड एज सपोर्ट काउंट. ओके, यहाँ पे आपको वो लिखना है I1 I2 कितनी बार आपके सेट में हो फ्रीक्वेंसी है उसका, राइट? तो I1 I2 यहाँ पे हो रहा है. प्लीज डोंट टॉक एवरीवन. कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ. कंफ्यूजन है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन. आपको यहाँ पे क्या करना है, कितने यूनिक आइटम है वो आपको लिखना है, राइट? तो यूनिक आइटम आपने लिखा I1 I2 I3 I4 I5. ओके, उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स दे आर occurring. ओके, तो I1 कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4, राइट? तो I1 का काउंट आपने लिख दिया. उसके बाद I2 कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4 5. I2 का काउंट मिल गया. देन I3 1 2 3 4. ओके, एंड देन I4 1 2 3 4. ओके, एंड लास्ट में I5 1 2. ओके, I5 is occurring 2 times. ये आपको मिल गया. यहाँ समझा लो सबको कैसे फाइंड किया एवरीवन? यस. उसके बाद आपको क्या करना है, मिनिमम सपोर्ट देखना है. तो मिनिमम सपोर्ट कितना है? 3 है, राइट? तो मिनिमम सपोर्ट जो सेटिस्फाई करता है उसको ही आपको आइटम में रखना है लिस्ट में. ओके, तो ये आपको सेट मिला. कभी आपने सेट निकाला था, राइट? अभी मिनिमम सपोर्ट 3 है, तो दिस इज वन इज सेटिस्फाइंग मिनिमम सपोर्ट, राइट? ये भी सेटिस्फाई करता है, ये भी करता है, ये भी करता है. ओनली अल्फा इज नॉट सेटिस्फाइंग मिनिमम सपोर्ट वैल्यू. यस और नो? तो हमने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, राइट? ये आइटम को हमने रिमूव कर दिया. तो अभी हमारे पास कितना है, ये इतना लिस्ट है I1 to I4. ओके, अभी हमें क्या करना है, जॉइंट स्टेप करना है. जॉइंट में आप लोग क्या करेंगे, ये आइटम को ये लिस्ट को उस वही लिस्ट से ज्वाइन करेंगे. So if we are calling this list as L1, then what we will do, L1 join L1. Join आपको मैच में है ना, राइट? ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, सेट का ज्वाइनिंग, वैसे ही आपको इसका ज्वाइनिंग करना है. तो कैसे करोगे, I1 with I2. So I1 I2 का एक सेट बन गया. I1 with I3, राइट? तो I1 I3 सेट हो गया. I1 with I4, I1 with I5. ओके, नेक्स्ट I2 with I3, I2 with I4, I2 with I5. ओके, then I3 with I4, I3 with I5. ओके, and then I4 with I5. सॉरी, I5 रिमूव करके I5 नहीं आएगा. तो I1 I2 I3 I4 वाले ज्वाइन होंगे. ओके, राइट? तो ये ऐसे ज्वाइन किया हमने I1 I2 I1 I3 I1 I4 I2 I3 I2 I4 and I3 I4. अंडरस्टूड एवरीवन? ये ज्वाइन करने के बाद आप क्या करोगे, उसका काउंट लिखोगे. काउंट कैसे फाइंड करोगे, ओरिजिनल जो आपका एग्जांपल है उसमें आपको चेक करना है कि ये दोनों आइटम एक साथ कौन से ट्रांजैक्शन में अपर हो रही है. ओके, ये दोनों आइटम एक साथ आनी चाहिए ट्रांजैक्शन में. ओके, तो फाइंड आउट I1 I2 एक साथ कितने ट्रांजैक्शन में आ रहा है. आप अपने एग्जांपल में चेक करके फाइंड करो एवरीवन. यहाँ पे देख के मत बोलो. I1 I2 4 टाइम्स आ रही है. यस. I1 I3 3 टाइम्स आ रही है. I1 I4 2 टाइम्स. इसमें देख के मत बोलो, आप खुद करो वहाँ पे. ओके,
यस। उसके बाद I2 I4 3 टाइम्स, I3 I4 2 टाइम्स। ओके, ये ज्वाइन करने के बाद आपने उसका फ्रीक्वेंसी लिखा। उसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रूनिंग। तो प्रूनिंग में क्या करोगे? प्रूनिंग में क्या होगा? We will compare this count with the minimum support count. Minimum support count क्या है? 3 है। ओके, तो जो 3 काउंट नहीं रहेगा, 3 से लेस रहेगा या हाँ 3 से लेस रहेगा उसको हम निकाल देंगे। 3 या 3 से ग्रेटर रहेगा तो उसको हम आइटम को रखेंगे। अंडरस्टूड? यस एवरीवन? यस। ओके, तो यहाँ पे कौन सी आइटम हम लोग निकालेंगे? कौन सा आइटम? I1 निकालेंगे। I1 I4 काउंट क्या है? 2। So we will remove that item set I1 and I4 and I3 and I4। ये दोनों सेट हम निकाल देंगे। ओके, तो उसके बाद कौन सा बचेगा? I1 I2 I1 I3 I2 I3 I2 I4। ओके, तो ये वापस एक टेबल बनाओ। कैंडिडेट L1 लिस्ट 2 करके एक दूसरा टेबल बनाओ जहाँ पे आपने मिनिमम प्रेशर कंपेयर करने के बाद जो आइटम रिमूव किया है, जो सिर्फ इंक्लूडेड है वही रहेगा। ओके, ये 1 2 3 4 L2 बन गया। एवरीवन बन गया L2। हाँ, ट्राई नहीं करना है वापस। L2 बन गया सबका। हाँ, आइटम कॉमन है ना? यस, L2 सबने लिखा? एग्जाम मध्ये दिलेलं असेल, एग्जांपल मध्ये दिलेलं असेल मिनिमम सपोर्ट। एग्जाम में आपको अगर ये आया है प्रायरी तो आपको दिया रहेगा व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट एंड मिनिमम कॉन्फिडेंस। ये आपको दिया रहेगा, इधर परसेंटेज में दिया रहेगा, नहीं तो एक्चुअल काउंट आपको दिया रहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। L2 आपको आपने लिखा, ये L2 मिला सबको? यस। अगेन आप क्या करोगे? यू जॉइन L2 विद L2। ओके, L2 ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा? You will join this with this, 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 and this with this। क्या होगा? समझ रहा है? Yes, ma'am. If I join this and this, I1 I2 and I1 I3, कौन सा सेट मिलेगा मुझे? कौन सा सेट मिलेगा? I1 I2 I3, right? I1 I2 with I2 I3, then I1 I2 I3, again I1 I2 I3 मिला। You don't have to repeat this. You need है वही आइटम सेट लेंगे। Okay? यहाँ पे मैंने लिखा है कैंडिडेट सेट C3 we get by joining L2 with L2। okay, इसका यूज कल को ये अप्रैल का बोल रहे हैं। इससे हम लोग कल आप नहीं आए थे ना लेक्चर में, इससे हम लोग
इससे हम लोग ये फाइंड करते हैं कि आइटम के बीच में एसोसिएशन है या नहीं है। अगर रहेगा तो उस हिसाब से हम लोग अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकता है, प्लानिंग हो सकता है कुछ। ओके, एक मिनट। ये अभी 3 आइटम सेट बनेगा, मतलब आप ये आपके पास 2 आइटम सेट था, 2 को ज्वाइन किया तो आपके 4 नहीं, अभी तो 3 ही बनेगा। देखो I1 I2 है, यस सबका ये बन रहा है 3 आइटम सेट। ये बना सबका, किसका नहीं बना है ये किसको नहीं समझा? ओके, तो ये जो आइटम आपको मिला है यहाँ पे L2, ये L2 को आप L2 से ज्वाइन कर रहे हो, इसको इसके साथ ही ज्वाइन कर रहे हो। ओके, तो ज्वाइनिंग कैसे करते हैं? ये आइटम को ये आइटम से ज्वाइन करो, तो I1 I2 I1 I3, इसका मतलब I1 I2 I3 एक सेट बन गया। I1 I2 with I2 I3, इसका मतलब I1 I2 and I3 दूसरा सेट बन गया। हाँ, मतलब सेम हो गया। Then I1 I2 with I2 I4, तो कौन सा सेट मिला? I1 I2 and I4। तो आपको कितने सेट मिले? I1 I2 I4 I1 I3 ओके, उसके बाद 1 3 का 2 3 से, तो I1 I2 and I3 I1 I3 ये भी हो गया ना, ऊपर ही हो गया ना, पहले भी हो गया ना I1 I2 I3। अच्छा, ओके, तो ये 4 बोल रहे हो आप लोग? यस, I1 I3 I2 and I4। तो I1 I2 I3 बनेगा। ओके, लेट इट बी, 4 का बन रहा है तो बनने दो। ओके, I1 I3 I2 I4 and then 2 3 का 2 4 से, then 2 3 and 4 क्या मिलेगा? 2 3 and 4। ओके, कैसे बनेगा? एक मिनट। Ma'am, your voice is not clear. 1 2 4 1 3 right, see this I1 I2 2 I1 I3 मतलब I1 2 3। ओके, तो ये आपको पहला मिला I1 2 3, then I1 2 with I2 3, तो अगेन I1 2 3 I1 2 with I2 4, मतलब I1 2 4। ओके, ये वाला मिला I1 2 4, then I1 3 with 2 3, मतलब I1 I2 I3 वो रिपीट है, राइट। then I1 3 with I2 4, so I1 I2 I3 and I4 आएगा यहाँ पे। ओके, I1 I2 I3 and I4 आएगा। उसके बाद I1 I3 with I2 I4, तो I1 I2 I3 I4। ओके, अगेन रिपीट है वो। then I2 I3 and I2 I4, तो I2 I3 and I4। ओके, ये लास्ट वाला I2 I3 and I4। ओके, अभी यहाँ पे देखो,
भी इंक्लूड होगा. ओके, जस्ट अ मिनट एवरीवन. ओके, ये वाला I1, I3 एंड I2, I4. सो क्या हो गया? I1, I2, I3 एंड I4. ओके, सो I1, I2, I3, I4. प्लीज पे अटेंशन एवरीवन. सी, एक कंडीशन है ए प्रायरी में, जो भी फ्रीक्वेंट सेट आपको मिलेगा उसका सबसेट भी फ्रीक्वेंट होना चाहिए. ओके, तो जैसे ये I1, I2, I3, I4 मिला तो उसका सबसेट क्या होगा? I1, I2, I2, I3, I3, I4. राइट, समझ रहा है? तो ये फ्रीक्वेंट सेट का सबसेट वो हो गया I1, I2, I2, I3, I3, I4. राइट, अभी इसका I3, I4 का काउंट कितना था? 2 था I3, I4 का. तो 2 हमने नहीं लिया क्योंकि वो मिनिमम सपोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था. राइट, तो इसीलिए अगर जो सबसेट उसका फ्रीक्वेंट नहीं है तो वो आइटम सेट हम रिमूव कर देंगे. अंडरस्टूड? जिसका सबसेट फ्रीक्वेंट नहीं है तो वो आइटम सेट फ्रीक्वेंट नहीं होगा. यस, इसीलिए हम लोग ये इसको रिमूव कर देंगे. ऐसे भी इसका काउंट 1 आ रहा है. राइट, I1, I2, I3, I4. देखो यहाँ पे कितना आ रहा है? I1, I2, I3, I4. राइट, ट्रांजेक्शन 6. It is occurring one time only. Right, so anyhow we will remove that. Okay, but always remember, अगर कोई सेट का सबसेट फ्रीक्वेंट नहीं है तो वो सेट हमें इंक्लूड नहीं करना है. अंडरस्टूड? ओके, आपको ये मिला. उसके बाद अगेन आपको फाइंड करना है L3. L3 के कैसे फाइंड करोगे? मिनिमम सपोर्ट वाले सेटिस्फाई नहीं करे उसको निकाल दो. राइट, तो यहाँ पे कौन सा रहेगा? I1, I2, I3 एक ही रहेगा क्योंकि बाकी सब का काउंट क्या है? लेस देन 3 है. राइट, so finally we will get L3 as I1, I2, I3. Everyone getting this? Yes. Yes, everyone. हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस निकालना है. रुको, बताया नहीं मैंने अभी तो. नहीं है. यस, हाँ, सबको समझा ये L3 कैसा है? समझा? राइट, तो अभी आपको क्या मिल गया? ये क्या मिल गया? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंट आइटम सेट. ये आइटम सेट है ना, I1, I2, I3, which is occurring frequently. So we will call it as frequent item set. Now, once you have found this frequent item set, now you will create association rule. That means you will find what is the association among these 3 items. ये तीनों आइटम के बीच में क्या एसोसिएशन है, तो हम लोग इसके लिए रूल जनरेट करते हैं. ओके, तो रूल कैसे जनरेट करना है? सो यू हैव टू कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस. ठीक है, कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना है. सबसे पहले आपको उसके सबसेट निकालना है. I1, I2, I3 के सबसेट क्या होंगे? Everyone, I1, I2, I2, I3, I1, I3, I1, I2, I3. ओके, ये सभी सबसेट के आपको क्या निकालना है? कॉन्फिडेंस निकालना है. ओके, तो कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला है, सपोज I1, I2, I3 तीन आइटम है. सो फॉर्मूला इज I1 यूनियन I2 डिवाइडेड बाय I1 सपोर्ट ऑफ I1, I2. ओके, यहाँ पे पहला दिया है, फर्स्ट सबसेट है
I1 I2. We are considering this first subset I1 and I2. तो रूल हम लोग कैसे जनरेट करेंगे? If I1 and I2 items are brought together, right? Then what are the chances to buying I3 also? Okay, what are the chances that item I3 will be bought together, right? So ये एक रूल हो गया. If I1 and I2 bought together, then customer will buy I3 also. What are the chances of that? Okay, so that is one rule. तो इसका confidence निकालना है हमें. So how we will calculate confidence? So the support of I1, I2, I3, union of all three items divided by support of this. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता है आपको? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसका फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन में ए एंड बी divided by probability of A. Okay, so this is same formula is applied for this confidence. Confidence का यही formula आपको apply करना है. Okay, probability of इसमें A union B आएगा. जहाँ पे भी A और B आइटम एक साथ बाय किए हैं वो काम डिवाइडेड बाय ओनली ए आइटम इज बॉट, उसका फ्रीक्वेंसी. समझ रहा है? यस और नो? ओके, तो सपोर्ट ऑफ, सपोज मुझे ये रूल, पहला रूल है मेरा, इफ आई डू बॉट टुगेदर देन व्हाट आर द चांसेस दैट कस्टमर विल बाय I3 also? What is the confidence for that? So find that confidence using this support of I1, I2, I3 divided by support of I1 and I2. Okay, so what is the support of I1, I2 and I3? 3. How you can tell that? What is 3? Yes, so we will find frequency here. हमने frequency find किया था. I1, I2, I3 का कितना था? 3, right? So we know that support for I1, I2, I3 is 3 divided by support of I1, I2. That means how many times item I1 and I2 is occurring? कितनी बार हो रहा है I1 and I2? यहाँ पे दिख रहा है I1 and I2 is occurring 4 times, right? So divide that and you will get the confidence. तो 3/4 अगर परसेंटेज में कॉन्फिडेंस निकालना है so multiplied by 100, so you will get 75%. Understood everyone? इसका मतलब क्या है? If customer will buy item I1 and I2, then chances that they will buy I3 also is 75%. Understood? Okay. अभी हमारे क्वेश्चन में दिया था मिनिमम कॉन्फिडेंस. कितना था मिनिमम कॉन्फिडेंस? मिनिमम सपोर्ट 3 था. कॉन्फिडेंस कितना है? हाँ, 60%. एग्जाम्पल में आपको दिया था मिनिमम कॉन्फिडेंस 60%. इसका मतलब जो रूल 60% सेटिस्फाई करता है वही रूल कैसा है? स्ट्रॉन्ग है. ओके, और जो रूल 60% क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो वीक रूल है. सो वी विल कीप ओनली स्ट्रॉन्ग रूल्स. ओके, वी विल एलिमिनेट वीक रूल्स. अंडरस्टूड? ये आपको पहला रूल, आपने उसका कॉन्फिडेंस फाइंड किया. देन नेक्स्ट रूल क्या है?
If I2 and I3 are bought together, then what are the chances of buying I1 also? Find out confidence for that. Find out everyone. Second rule है I2, I3 are bought together, then what are the chances for buying I1 also? This one, I2, I3 to I1. Huh? समझ रहा है सबको? ओके 75% आया सबका. नेक्स्ट रूल इज I1, I3 to I2. 100 निकाल लिया वो भी. एंड फोर्थ रूल I1 to I2, I3. अगर आइटम 1 खरीदा है तो I2, I3 दोनों लेने के चांसेस कितने हैं? ऑनलाइन वाले Yes, tell me count. I1 to I2, I3. 75. Okay. Next, I2 to I1, I3. I2 to I1,
I1 I3 का 50 आ जाता है। I2 I1 I3 हाँ 60 और I3 का I1 35 है। मुझे लगता था एक बजे आएंगे सर एक बजे आएंगे एक बजे आएंगे कौन सा रिवीजन सर आएंगे एक बजे नहीं गए झूठ क्यों बोलते थे ये जो लास्ट वाला है I1 I3 उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। अरे तेल लगा दिया मुझे नहीं करना क्या हुआ ओवर है ऑफर से हमारा जी मैं पुलिस के लिए चुकी दे लो आया तेरा आंसर पूछ क्या पूछ ले क्या पूछ रहा था वो लास्ट वाला क्या लास्ट वो फिर तो Okay, I2 to I1 I3 is 60, I3 to I1 I2 is 75. So finally हम लोग क्या करेंगे? We will keep only those rules which satisfy minimum confidence value. Minimum confidence is 60%. That means 60% वाले या उससे higher वाले रूल है वो कैसे रूल है? Strong rule है कैसे? Strong. So we will keep only those rules. Okay? तो कौन से 60 या 60 से higher है? सब है ना? Okay, so we will keep all these rules. Okay? Understood? Everyone understood this? Yes, ma'am. Okay, short में मुझे कंक्लूजन कोई बता सकता है हमने क्या किया? नहीं. Yes, who will tell me? What we have done here? बोलेगा कोई? बट सबको सुनाई देना चाहिए. ऐसे सुनते हो. हरे कृष्णा Yes, आप बता सकते हो? मैं विशाल बता सकता हूँ। हाँ विशाल आप बताओगे? नहीं. हाँ सिद्धांत के सिद्धांत. सिद्धांत हाँ. आप बता सकते हो? Everybody listen to him. Yeah. ये आप क्या डिपेंडेंसी एसोसिएशन. ओके कैसे चेक किया? शॉर्ट में नहीं पूरा डिस्क्राइब करना है कि हमने क्या किया इसमें. हाँ. What is Harari algorithm? What are the steps in that? Okay, इतना बता दो. Joining and हाँ. What is Harari?
ए प्रायरी हर कोई ए प्रायरी है ना? Why we are using this? Why we are using this? Conclusion क्या निकला? Finally आइटम्स की प्रोबेबिलिटी probability नहीं. लिमिटेड मतलब एक नहीं मतलब ये निकाल कि अगर ये बेचेंगे तो ये भी बिकने की कोशिश है। जैसे पानी का पूरी बिकने बिकने वाला है। राइट. फाइनली कंक्लूजन ये है कि हमें आइटम्स के बीच में कौन से आइटम बीच में एसोसिएशन ज्यादा है वो हमें देखना है. तो हमने कॉन्फिडेंस से कंपेयर किया. जिसका कॉन्फिडेंस मिनिमम कॉन्फिडेंस से हायर है वो वाले आइटम जो है वो स्ट्रांगली एक दूसरे से एसोसिएटेड है. ओके, अंडरस्टूड? सो ये एसोसिएशन हमने फाइंड किया. ओके, इसका डायरेक्टली आर में है. Okay, write down this homework example. Everyone, solve कैसे करोगे? सॉल्व बुक में करेगा ना, सॉल्व में करेगा फोटो देख के भी आपको करना ही है ना, एनी हाउ करना ही है ना. तो क्या हुआ? हाँ, ये क्लासरूम में आपको अपलोड करना है बस. ओके, हमारे आइटम्स है. हाँ, तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या वैसे सेम वैसे ही करना है. एग्जाम्पल आते हैं ना एकदम 10. Write down minimum support and confidence. Okay. ओके, एक एग्जांपल और देती हूँ, वो अभी आपको सॉल्व करना है.
ये एग्जाम्पल आपको अभी सॉल्व करना है। ये नहीं, रुको रुको। हाँ, नहीं जाना। ओके, ये आपको अभी सॉल्व करना है। मिनिमम सपोर्ट इज 2। %60। Sorry, minimum confidence is 70%. Minimum support is 2. बिना बातें किए करना है। हाँ, सब लोग अपना अपना करेंगे।
ऐसे कुछ नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। बट उसमें ज्वाइन करेंगे ना तो वही वही आएगा, तब तक आपको सब स्टॉप हो जाता है, रिपीटेड आएगा तो स्टॉप होना। कैसे करेंगे? What is the first step? क्या नाम है? हाँ, तो वो क्या है? ट्रांजेक्शन का काम नहीं लेता है। हाँ, आएगा आएगा, वापस चेक करो, गलत लिखा है, वापस चेक करो।
कितना जल्दी निकला? कौन सा आया? आइकन ऐड तो एक ही है। एक मिनट कहाँ कर दी? अभी मतलब ये दोनों का मतलब अलग अलग निकाल दिया जैसे R1 I2 I3 का सबसेट बना पूरा अभी इसका सबसेट निकाल सबके साथ नहीं, दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों का अलग अलग सबसेट निकाल। नहीं, अभी अपने ये फाइनल मिल गया ना, मतलब ये दोनों सेट है, दोनों सेट है। अलग लगाओ या सेम लगाओ? देखिए अभी ये I1 I2 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 I1 I2 I2 मतलब ये दोनों फ्रीक्वेंट सेट है, तो ये फ्रीक्वेंट सेट को फिर कंबाइन करोगे तो वो भी फ्रीक्वेंट ही रहेगा। ओके, तो आप कंबाइन करके फिर उसका सबसे निकालोगे तो भी चलेगा। हाँ, तो कंबाइन करो और ये फाइनल अप्लाई नहीं, उसका सब कुछ नहीं करना है, ये आपका
अभी आपने ये लिया इसका सबसे कौन सा सबसे अभी आप क्या करोगे ऐसे दूसरा ऐसे सब उसके कॉम्बिनेशन में कोई भी यस फाइनल सबसेट क्या मिल रहा है एटम सेट एवरीवन फाइनल आइटम सेट क्या मिल रहा है मिला किसी को क्या पे क्या बराबर दूध दवाई बच्ची हो जाती है यार दोनों का काउंट कितना है I1 I2 I3 how many times they are occurring together एक ही बता है
नीड I1, I2, I3. इथे काय Second आहे. हा 3 2 3 5 5 है दोन के 5 है एक डायरेक्टली इथे कसं आलं पण ते 3 चा सेट कुठे बनवला हे 2 चा सेट आहे मग 3 चा सेट I1 I2 काढलं I1, I2 काढलं. I1, I3 काढलं. I1, I2 त्यानंतर I2, I3, I2, I1. हे काढलेले त्यातले ते काढून टाकले त्याच्यानंतर हे जॉईन करायचे असतात I1 I2 with I1 I3 ते जॉइनिंग वाला कुठे लिहिलं आता ते I1 I2 I3 ते कुठं लिहिलं एक मिनट एक मिनट ओके फाइनली आपको L3 जो मिल रहा है L3 क्या मिल रहा है I1 I2 I3 राइट उसका काउंट कितना है दूसरा क्या मिल रहा है I1 I2 I5 उसका काउंट है 2 पे अटेंशन हियर ये सबको मिल रहा है L3 सबको मिल रहा है हाँ यस और नो Yes. ओके अभी हम लोग क्या करेंगे C4 निकालेंगे राइट C4 में क्या होता है L3 को L3 से ही कंबाइन करना है मतलब हम लोग क्या करेंगे I1 I2 I3 और I1 I2 I3 हाँ मतलब I1 I2 I3 I5 मिलेगा राइट सो वी विल गेट I1 I2 I3 I5 एक मिनट ओके एवरीवन प्लीज पे अटेंशन आप लोग अभी स्टॉप कर दो 2 मिनट मैंने ए प्रायोरी का एक प्रॉपर्टी बोला था अगर कोई सेट का सबसेट फ्रीक्वेंट नहीं है तो वो सेट फ्रीक्वेंट नहीं रहेगा बोला था कि नहीं राइट तो अभी इसका सबसेट क्या होगा I1 I2 I3 I5 का सबसेट क्या है I1 I3 I1 I3
एक मिनट. One of the subset is I1, I2, I3 and I5, right? ये एक सबसेट हुआ इसका. See the count of I2, I3 and I5. I2, I3 and I5. How many times it is occurring? One time. इसका मतलब ये सेट का सबसेट, वन ऑफ द सबसेट कौन सा? I2, I3, I5. One of the subset is not satisfying the condition. अगर सबसेट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका सेट भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट? तो दैट इज द कंडीशन. ओके, इसका मतलब ये आपका जो है कैंडिडेट सेट C4 वो बनेगा नहीं. ओके, समझ रहा है एवरीवन? रिपीट करूं? ये C4 आपने जो निकाला, C4 का एक सबसेट क्या है? I2, I3 and I5, right? One of the subset is I2, I3 and I5. Okay? तो I2, I3, I5 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार हो रहा है. That means it is not satisfying the condition, right? तो अगर सबसेट, कोई सेट का सबसेट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो सुपर सेट भी इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग. ओके, इसीलिए ये सेट नहीं पॉसिबल है. ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट नहीं है बिकॉज इट सबसेट इज नॉट फ्रीक्वेंट. सबसेट फ्रीक्वेंट नहीं है तो सुपर सेट भी फ्रीक्वेंट नहीं होगा. ओके, अंडरस्टूड? इसीलिए हम लोग ये सेट नहीं बनाएंगे I1, I2, I3, I5. ओके, तो अभी क्या बचा यहाँ पे? ये दोनों ही बचे, राइट? ओके, तो इसमें से अगेन आपको चेक करना है कि इसके सबसेट क्या है, वो फ्रीक्वेंट है कि नहीं है. ओके, और इसके सबसेट क्या है और वो फ्रीक्वेंट है कि नहीं. ओके, अगर फ्रीक्वेंट है दैट मीन्स ये दोनों रूल, दोनों आइटम सेट आपको कंसीडर करने पड़ेंगे. हाँ, नहीं, मुझे ध्यान में आया इसका सबसेट नहीं है फ्रीक्वेंट, वो मैंने चेक नहीं किया था, राइट? इसका सबसेट फ्रीक्वेंट नहीं है ना. ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा चेक करनी है. ओके, अभी इसके सबसेट निकाल के आपको चेक करना है कि वो फ्रीक्वेंट है या नहीं है. अगर फ्रीक्वेंट है तो ही वो सुपर सेट कंसीडर करना है. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? Always remember this property, okay? हाँ, जो है वो रहने दो, कुछ ड्रॉप कर रहे हो. और किसी का सेटिस्फाई नहीं हुआ, तूने सबका निकाला, ठीक है? I का सिंबल है कहीं ओके. Find out
I1 I2 I5 के सबसेट क्या मिल रहा है? I1 I2 I5. Find out the rule I1 I2 to I5. I1 I2 to I5. Find the confidence for that rule. I1 I2 to I5. इसका कॉन्फिडेंस फाइंड करो. I1 I2 to I5. ये तो कुछ मतलब नहीं है ऑनलाइन का, सोते रहता है. कितना 50 कितना आया कॉन्फिडेंस? क्या बताया? आपको स्टॉक रूल फाइंड करना है. वो सबसेट के कॉन्फिडेंस निकालो फिर स्टॉक रूल. I1 I2 I5 में 50% आया ना? नहीं, I1 I2 to I5 50% आ रहा है. I1 I2 to I5. I1 I2 Yes, follow.
दोनों सॉल्व करेंगे। सी एवरीवन, आपको ये दोनों सेट मिला ना, फाइनल ये दोनों सेट मिला, तो इसका भी सबसेट निकालना है, इसका भी सबसेट निकालना है और उनके सबके कॉन्फिडेंस निकालना है, रूल बनाने हैं और कॉन्फिडेंस निकालना है। ओके, जैसे हमने निकाला I1 I2, एक सबसेट निकाला, तो I1 I2 टू I3 एक रूल हो गया, दूसरा रूल हो गया I1 I3 टू I2, तीसरा रूल हो गया I2 I3 टू I1, राइट? ऐसे अलग 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 रूल निकालने आपको और सबका कॉन्फिडेंस निकालना है। अंडरस्टूड? यस और नो? ओके, और फिर सबका रूल निकाल के आपको क्या चेक करना है? रूल निकाल के क्या चेक करना है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मिनिमम कितना होना चाहिए? 70% दिया है एग्जाम्पल में। Minimum confidence should be 70%. So you will keep only those rules which satisfy minimum confidence 70% criteria. Okay? बाकी के rules को eliminate कर दो. Understood? अटेंडेंस भूल गई। इसके पहले किसका लेक्चर था? कौन? गेले लेकर नहीं आ रही। मैं आ रही हूँ, हाँ, एक मिनट।